और चलिए आपको अब सदन की कार्यवाही दिखाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई। Speaker sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 2 in today's revised list of business. Thank you, Speaker sir. Thank you. Item number 3, Shri Jiten Prasad ji. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। Item number 4, Dr. P. Chandrasekhar. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. Item number 5, Shri B.L. Verma ji. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के अंकित पत्र सभा पटल पर रखता हूं। Item number 6, Shri Sadish Chandra Dubey. Item number 6, Shri Sadish Chandra Dubey. माननीय महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 6 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं। Item number 7, Shri Bilplab Kumar Dev. Sir, I rise to lay on the table the Minister for State is there. He is already there in the House. I rise to lay on the table on the minutes Hindi and English. तो आपने देखा लोकसभा की कार्यवाही चल रही है। अपडेट आपको आगे शुरू हो गई है और एंटी पेपर लीक बिल पर आज चर्चा होनी है और ऐसे में हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी, जो एक बार फिर 12 बजे के साथ ही शुरू कर दी गई है। तो एंटी पेपर लीक बिल पर आज लोकसभा में चर्चा होनी है। कल विपक्ष के कई नेताओं ने अपनी बातें रखी, वहीं सरकार की ओर से आज जवाब पेश किया जाएगा। Speaker sir, with your kind permission, I rise to make the following statement on the floor of the House. The status of implementation of recommendations contained in the 409th report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change on demands of Grant 2026-27, demand number 89 pertaining to Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. Item number The status 10. of implementation of recommendations contained in the 411th report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change on demands for Grant 26-27, demand number 24 pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. Thank you. Item number 10, Dr. L. Murugan. And permission, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 22nd report of the Standing Committee on Communication and Information Technology on review of mechanism to curb fake news pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Item number 11, Shri Sadish Chandra Dubey. आपकी अनुमति से मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 11 पर उल्लेखित खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग 2026-27 के बारे में कोयला खान और इस्पात संबंधित अस्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विशिष्ट सिफारिशों के लिए कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 12, Srimati Nimmu Ben Jayandi Bhai Babaniya. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 12 पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध विवरण जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित भारत में चीनी उद्योग एक समीक्षा के बारे में संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। Item number 13, Shri P.P. Chaudhary. Chairman sir, I wish to move देखिए माननीय सदस्य, that this house आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं? time for presentation. आप बैठिए। I read again because the speaker sir is here. अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते तो मैं सदन बंद कर दूंगा। Speaker sir,
अगर आप I wish to move that this House to extend time for presentation of the report of the Joint Committee on the Constitution. ये तरीका ठीक नहीं है। 129th ये तरीका ठीक नहीं है। या तो आप सदन में चर्चा कर लीजिए। Territories Laws Amendment Bill 2024. Up to the आप समझाइए अपने सदस्यों, प्लीज। of last week of the session 2026. बैठिए। नो, आप उनके वकील मत बनो, वो खुद समझते हैं। चलो बैठिए आप, पहले आप बैठिए सब, बैठिए आप, प्लीज बैठिए। ना, ये तरीका ठीक नहीं, बैठिए प्लीज। किसको आना है किसको नहीं आना आप तय नहीं करोगे, आप तय करने वाले नहीं हो। जिन माननीय सदस्यों का, जिस माननीय मंत्री जी का विधेयक है वो यहाँ पर उपस्थित है, जिससे पार्लियामेंट नहीं चलती है। नो, यस सर, यस सर। देखिए, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। रात को 11 बजे तक सदन में चर्चा हुई, सभी माननीय सदस्यों ने अपने मत विचार किए। आप अगर आपके प्रतिपक्ष के नेता को नहीं बोलने देना चाहते हो, आपकी योजना हो तो बता दीजिए, बता दीजिए। यस सर। प्लीज नो, नो प्लीज, और को लोगों को बोलने दें आप, प्लीज डिबेट शुरू करने दें, डिबेट शुरू करो। आपने जो डिबेट शुरू करो, प्लीज प्लीज। स्पीकर सर, यस स्पीकर सर, आई विश टू मूव दैट दिस हाउस टू एक्सटेंड टाइम फॉर द presentation of the report of the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 up to the first day of the last week of the winter session 2026. प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, हाँ। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब दिलेश्वर कामत जी हैं, एक मिनट रुकिए, पर एक ले लें। आइटम नंबर 14 नित्यानंद राय। मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का संशोधन करने के लिए विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। चलिए, मनीष तिवारी के वाकया, चलिए आगे बढ़े, ठीक है। लोक परीक्षा प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक प्रस्तावित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूँ। माननीय सदस्यगण, जिन्हें नियम 377 के तहत आज मामले उठाने की अनुमति दी है, वो व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सदन के पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 16 लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, श्री दिलेश्वर कामत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। साथ ही इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विद्यार्थियों युवाओं के उज्जवल भविष्य हेतु शिक्षा स्थिति को मजबूत एवं गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाने के साथ तकनीकी शिक्षा क्षेत्रों की अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए सार्थक। आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं? टाइम फॉर प्रेजेंटेशन। आप बैठिए। अगेन बिकॉज़ स्पीकर सर। अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते तो मैं सदन बंद कर दूंगा। स्पीकर सर, अगर आप आई विश टू मूव दैट दिस हाउस। आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं? टाइम फॉर प्रेजेंटेशन। तो ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं और ये बातचीत है जब विपक्ष हंगामा कर रहा था तो स्पीकर ने पूछा कि क्या आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं, और उसके बाद क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, गृहमंत्री सदन में आए।
और दूसरी तरफ राज्यसभा में भी हंगामा हुआ जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि लोकतंत्र सुरक्षित। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हो गई है और स्पीकर ओम बिरला इस बार नाराज नजर आए विपक्ष के रवैये से, क्योंकि विपक्ष बार बार हंगामा कर रहा था। विपक्ष की ओर से बार बार गृह मंत्री के आने की बात कही जा रही थी कि गृह मंत्री सदन में आए, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। इसी को लेकर लोकसभा अध्यक्ष नाराज नजर आए। हालांकि आपको बता दें कि राहुल गांधी अब से थोड़ी ही देर में इस बिल पर बोलने वाले हैं। एंटी पेपर लीक बिल जो है, इस पर आज राहुल गांधी बोलेंगे और सरकार का जवाब भी आएगा। एक अहम प्रावधान के तहत राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि वे इस कानून के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए किसी भी सेशन जज को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के तौर पर नामित कर सके। यह प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार को जरूरत पड़ने पर इस कानून के तहत अपराधों की जांच के लिए STF बनाने का अधिकार दिया गया है। साथ ही सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 में पेपर लीक करने या नकल गिरोह में शामिल व्यक्तियों को 3 से 5 वर्ष कारावास एवं 10 लाख रुपए जुर्माना की जगह 5 से 10 वर्ष कारावास एवं 50 लाख रुपया जुर्माना का प्रावधान है। सबसेक्शन 2 में परीक्षा आयोजित करने वाली बाहरी कंपनियां या सर्विस प्रोवाइडर्स की संलिप्तता होने पर 4 वर्ष कारावास एवं 1 करोड़ जुर्माना की जगह 8 वर्ष कारावास एवं 5 करोड़ रुपये जुर्माना है। सब सेक्शन 3 में 3 वर्ष कारावास और 1 करोड़ रुपये जुर्माना के जगह 5 वर्ष कारावास और 5 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। सेक्शन 11 के सब सेक्शन 1 में कोई संगठित गिरोह या कोचिंग संस्थान शामिल किए जाते हैं तो 5 वर्ष कारावास और 1 करोड़ जुर्माने की जगह 7 वर्ष कारावास और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। नई धारा 12 की उपधारा 1A और B जोड़ी गई है, जिसके तहत फास्ट इन्वेस्टिगेशन एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था है, जिसमें जांच एजेंसी को 2 माह के भीतर जांच पूरा करना है और चार्जशीट दाखिल करना है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रतिदिन सुनवाई कर चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर लेनी है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेपर लीक पर श्री नंदन नीलेकनी जी का अध्यक्षता में 100 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स गठित करने का ऐलान किया है, जो प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली और संरचनात्मक सुधारों पर कार्य करेगी। सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी एवं प्रगतिशील आर्थिक नीतियाँ एवं योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ सभी वर्गों को समानांतर एवं सार्थक लाभान्वित करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र द्वारा संरचनात्मक एवं योजनाबद्ध तरीके से परिवर्तन की शुरुआत कर शिक्षा हित, युवा हित, विद्यार्थी हित, आर्थिक हित तथा लोकहित में शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के अधिक से अधिक अवसर प्रदान कर भारतीय शैक्षणिक संस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है। सभापति महोदय, विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के युवा, विद्यार्थी, गरीब और मध्यवर्गीय परिवार, नारी शक्ति और किसान सशक्ति होंगे। सरकार इसके प्रति वचनबद्ध है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं नए संशोधन विधेयक 2026 का समर्थन करते हुए बिहार के समस्त जनता एवं जनता दल यूनाइटेड के तरफ से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री पप्पू यादव जी।